سب سے پہلے آپ صحافی دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اس اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اور کرنٹ جو پاکستان کی کیفیت اور صورتحال ہے اس صورتحال میں اس بڑی ایکٹیویٹی کے حوالے سے توجہ دی، تشریف لائے اور آپ یہاں آفس میں موجود ہوئے. آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ کو ایک ہلکا سا انٹروڈکشن بھی ہو کہ اس وقت جو پینل آپ کے سامنے موجود ہے پاکستان کی قومی سطح کی جماعتیں، ان کی مرکزی لیڈرشپ اور پاکستان کی بڑی سطح کی نمائندگی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اگر انتہائی بائیں طرف سے شروع کریں تو سید رضا ہمارے مجلس ائمۃ المسلمین کے سیاسی شعبے کے رکن ہیں، پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں اور اس کے علاوہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی بلوچستان صوبائی اسمبلی کی. حجت الاسلام والمسلمین علامہ احمد اقبال رضوی مرکزی کابینہ کے رکن ہیں اور مرکزی شورا کے رکن ہیں مجلس ائمۃ المسلمین پاکستان کے. میرے بالکل بائیں طرف شہید کے صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ سید حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل 22 جماعتوں کا الائنس اور مجموعہ ہے، اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں. اور صاحبزادہ فضل کریم شہید جو ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر تھے، ان کے شہید کے بیٹے ہیں. جامعہ رضویہ اور اس کے تحت چلنے والی جتنی چینز ہیں اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ اس وقت میری بائیں طرف میرے ساتھ موجود ہیں. میرے دائیں طرف ناظم اعلیٰ ہیں علماء ونگ تحریک منہاج القرآن پاکستان کے جناب سید فرت حسین شاہ صاحب ہیں اور فرت حسین شاہ صاحب، اور ان کے بالکل ساتھ ہمارے موجود ہیں وزیر القادری صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے صوبہ بلوچستان اور مرکز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور بولان سے وزیر القادری صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں. علامہ وزیر القادری صاحب بولان سے تشریف لائے ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے مرکز اور صوبے کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علامہ مقصود علی ڈومکی سیکرٹری جنرل ہیں مجلس ائمۃ المسلمین صوبہ بلوچستان کے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پیچھے موجود جو شخصیات ہیں وہ منہاج القرآن کی لیڈرشپ موجود ہے. اسی طرح سنی اتحاد کونسل کی مقامی صوبہ پنجاب کی لیڈرشپ سے مفتی محمد سعید رضوی جو ان کے دارالافتاء جو مفتیان کونسل ہے جس نے دہشت گردوں کے حوالے سے اور طالبان کو خوارج قرار دیا اور فتویٰ جاری کیا ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، اس کے کوارڈینیٹر مفتیان کونسل کے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. مفتی محمد سعید اور صاحبزادہ عمار رضا بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو صوبہ پنجاب کے کوارڈینیٹر ہیں سنی اتحاد کونسل. اس کے علاوہ منہاج القرآن اور سنی اتحاد کونسل کی دیگر وہ موجود ہے. صاحبزادہ حسن رضا وہ بھی موجود ہیں. مجھے ناصر عباس شیرازی کہتے ہیں. مجلس ائمۃ المسلمین کے سیاسی شعبے کی مسئولیت میرے پاس ہے. تو ابھی یہ پریس کانفرنس ہماری بنیادی طور پہ کل کا ایک پروگرام بھی ہے، لیکن یہ ان کلیات کے اوپر ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اس پہ چند باتیں میں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ فرد شاہ صاحب سے بھی اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی استفادہ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوسچن آنسر کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے. پہلی بات یہ ہے، پاکستان کو بیچنے کے عمل کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے اور مذاکرات کے نام پہ دہشت گردوں کو دوبارہ تقویت دینے کا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا، ان کو پاکستان میں مضبوط کرنے کے مکروہ کھیل کا آغاز کیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمارا پہلا سوال یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ 8 ماہ جو آپ نے انکنڈیشنل مذاکرات کے لیے کہے، ان 8 ماہ کا حساب کتاب کون دے گا، جس کے اندر ہمارے جرنیلوں کو شہید کیا گیا، جس کے اندر ہمارے ملت کے بہترین افراد کو شہید کیا گیا، جس کے اندر چرچوں کے اندر لوگوں کو مارا گیا، جس کے اندر امام برگاہوں کے اندر لوگوں کو مارا گیا، جس کے اندر مساجد کا انہدام کیا گیا. جن 8 ماہ کے اندر پاکستان کی ایک کریم یہاں زائرین امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان ہزاروں لوگوں کی شہادتوں کا مقدمہ ہم کس کے اوپر درج کرائیں؟ کیا وہ لوگ براہ راست جنہوں نے مذاکرات کے نام پہ پوری قوم کو دھوکہ دیا اور ان ہزاروں لوگوں کی شہادت کا سبب بنے، وہ براہ راست مجرم ہیں؟ اور ایک مرتبہ پھر اسی خیانت کارانہ کھیل کا آغاز کر دیا گیا مذاکرات کے خوبصورت نام کے اوپر، جس کا ہدف طالبان نواز دہشت گردوں کو پاکستان کے سیاسی عمل میں شامل کرنا ہے، ان کا خود ساختہ نظام، مذہبی نظام، اس کو مسلط کرنا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. لہٰذا ہمارا یہ تمام فورم کمپلیٹلی اس پروسیس کو رد کرتا ہے، مذاکرات کو پاکستان کے ساتھ کھلی دشمنی قرار دیتا ہے، پاکستان کو بیچنے کے عمل کا آغاز قرار دیتا ہے، شہداء کے خون کے ساتھ غداری قرار دیتا ہے، طالبان کو مفسد فی الارض کا لقب قرار دیتا ہے، جو پہلے سے صوبائی اتحاد کونسل اور دیگر علماء اور منہاج القرآن کے سرپرست اعلیٰ جناب طاہر القادری صاحب باقاعدہ ان کو قرار دے چکے ہیں. باقاعدہ طور پہ یہ ورژن ہم اس کو قرار دیتے ہوئے ان
इनके साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात को आईने पाकिस्तान से मावरा कदम करार देते हैं। ये गैर आईनी है, गैर इखलाकी है, गैर शरई है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इसके नतीजे में सिर्फ जो एक रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा कि दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होगी, वो ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होकर पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाएंगे। लिहाजा चंद सवालात मैं रेज करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहला सवाल ये है, आपने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात शुरू किए हैं, कौन गारंटर है? दहशतगर्दों ने पहली जो डिमांड की है वो डिमांड ये किया है कि आप हमारे फलां 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 पूरे पाकिस्तान के आला सतह के ओहदेदारों को आप रिहा करेंगे, उनको अनकंडीशनल तौर पर रिहा किया जाएगा, मावरा अदालत रिहा किया जाएगा। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको रिहा किया जाएगा तो फिर किस बात की क्या गारंटी है कि कल को अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं, हर दो सूरत में क्या उनको दोबारा आप कंट्रोल में ला सकेंगे? क्या वो दोबारा गिरफ्तारी देंगे या वो दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज करेंगे और भरपूर तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज? कौन गारंटर है? कोई गारंटी दरमियान में नहीं है। और फिर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए आपने कौन सा टाइम फ्रेम दिया है? क्या कोई अनलिमिटेड मुज़ाकरात होते हैं या अनलिमिटेड सिर्फ इताअत होती है, सिर्फ ताबेदारी होती है? मुज़ाकरात अनलिमिटेड नहीं होते। टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए था, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाता, कोई गारंटर नजर नहीं आता। फिर हम ये देखते हैं जब भी आप किसी को मुज़ाकरात के लिए बनाते हैं, कोई मॉडरेट टीम लेके आते हैं, कोई ऐसे लोग कि जिसके दोनों तरफ इंटरेस्ट हों। इस वक्त ये 4 रुकनी जो टीम लेकर आए गए हैं, ये 4 रुकनी टीम पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है, ये इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है, ये पॉलिटिकल नुमाइंदे नहीं है, ये चारों के चारों अरकान बुनियादी तौर पे तालिबान के नुमाइंदे हैं, जिनके जरिए से तालिबान के मफादात को आगे बढ़ाना मकसूद है। वो तालिबान के वकील हैं हुकूमत की तरफ, वो हुकूमत से तालिबान के मफादात को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, वो पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। हमें चारों अफराद को, जो चारों अंडर क्वेश्चन हैं, जो चारों तालिबान के पुराने साथी हैं, जो चारों हजारों और लाखों लोगों के कत्लेआम के शरीक हैं, किसी ने साफ्ती कलम के जरिए से लोगों को कत्ल किया है, किसी ने बाकायदा असले के जरिए से लोगों को कत्ल किया, ये सारे साजिश का एक पार्ट है। हम इनको मुतलकन मुस्तरद करते हैं, किसी तौर कबूल नहीं करते और हम इंशाल्लाह उसके मुकाबले में बहुत बड़ा स्टैंड लेने का ऐलान करते हैं। ये शोहदा के मैं सवाल करता हूं आप लोगों के जरिए से, आप दहशतगर्दों से डायलॉग करते हैं, कातलों से डायलॉग करते हैं। पाकिस्तान में 60,000 लोगों के जो लवाहिकीन हैं, जो शहीद हैं पाकिस्तान की धरती के लिए, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, आप उनके साथ क्यों डायलॉग नहीं करते? उनको कभी ऑन बोर्ड क्यों नहीं बिठाते? पाकिस्तान में 2 मकातबे फिक्र हैं जो सबसे बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। आज ये दोनों दहशतगर्दी का विक्टिम है। मज़ारात के ऊपर हमले हो रहे हैं, दरगाहों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इनकी शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, निश्तर पार्क का अटैक सबके सामने है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद दहशतगर्दों को आप अहमियत देते हैं, उनको स्टेक होल्डर करार देते हैं, उनके साथ बैठकर आप मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन वो जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, उनके साथ आप बैठना गवारा नहीं करते, उनके साथ बैठकर आप उनकी राय लेना गवारा नहीं करते। इसका मतलब है आप दहशतगर्दों की पिच पर खेल रहे हैं, इसका मतलब है आप दहशतगर्दों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ये बहुत खतरनाक है, ये मुल्क को बेचने जा रहे हैं, ये आलमी एजेंडा है पाकिस्तान को तकसीम करने का। इसके मुकाबले में वो कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो खड़ी हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी पाकिस्तान के अंदर, उसके नतीजे में हम पाकिस्तान में अवामी सतह पे ऐसा माहौल दुरुस्त करेंगे कि हम ऐसी कैफियत जनरेट करेंगे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के रियासती इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पाक फौज को अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दों के मुकाबले में स्टैंड लेना पड़ेगा। और आज के बाद अगर कोई शख्स दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होता है, उसका FIR वाज़े तौर पे मौजूदा हुक्मरानों और इस 4 रुकनी कमेटी के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। ये जिम्मेदार होंगे, एक भी अगर शहादत होती है ये जिम्मेदार हो। ये मुस्तक़िल अर्ज हैं, इनकी इस्लाह की कोई सूरत नहीं है, इनका सिर्फ जंग के साथ खात्मा हो सकता है। और ये बात हमें कही जाती है इनके साथ जंग नहीं हो सकती। क्यों जंग नहीं हो सकती? क्या सवात में इनके साथ फौज ने जंग नहीं की? क्या मालाकाड़ में इनके साथ फौज ने जंग नहीं की? क्या इनको शिकस्त फाश नहीं दी? ये लोग तो इतने जुर्रतमंद नहीं है, ये तो मरब और अंतर से भी बुज़दिल लोग हैं। मरब और अंतर भी सामने आकर मुकाबला किया करते थे, ये तो इतनी जुर्रत भी नहीं रखते कि कहीं सामने आकर मुकाबला करें। ये बुज़दिल लोग हैं। इनके मुकाबले में आप जानते हैं, यहाँ कोयटा के अंदर आपने दहशतगर्द हमलों को देखा कि दहशतगर्द हमले हुए और आपने खुदकुश हमलावर को भी पकड़ा। डेरा इस्माइल खान के अंदर हमारे बच्चों ने खुदकुश हमलावरों को पकड़ा, लाहौर के अंदर पकड़ा, खुद ये आप जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर जामिअतुर रज़ा में खुदकुश हमलावर को हमने मारा। और अभी आपके 16 साल के एक बच्चे ने खड़े होकर एतजाज अहसन ने यह पैगाम दिया है, यूं दहशतगर्दों के मुकाबले में खड़ा हुआ जा सकता है, यूं पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। और जब आप खड़े हो जाएंगे कि हमने अपना खून देना है लेकिन इस मुल्क को नहीं देना, उस वक्त ये पाकिस्तान बचेगा। लिहाजा ये स्टैंड लेने का टाइम है। और इस वक्त आपके सामने ये तमाम जमातें
खड़ी हो गई हैं और हम मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक महाज दुरुस्त करने का प्लान रखते हैं। उसकी वजाहत इंशाल्लाह ताला आखिर में हमारे साहबजादा हामिद रज़ा करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ मिनहाजुल कुरान के उलमा विंग के सरपरस्त और उनके सरबराह जनाब फरीद अब्बास शाह साहब से कि वो इस मौजू के ऊपर बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जो हज़ारा बरादरी के नहते मासूम बेगुनाह अफराद पिछले दिनों में शहीद हुए हैं, पिछले साल भी इसी यकबख्ता सर्दी के मौसम में जनवरी ही का महीना था जब लोग लाशें लेकर बैठे हुए थे, और इस साल फिर उस अमल को दोहराया गया है। मैं सबसे पहले तो उन सब के लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ, और जो लोग इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं उनके लिए दुआए रहमत करता हूँ। और सानियन ये कि ये जो बात की जा रही है कि इन जालिम लोगों से, इन दहशतगर्दों से जो मुज़ाकरात के नाम पर कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, या इस हवाले से जो भी लाए अमल गवर्नमेंट जो है वो तय कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की साफ और वाज़ेह शिकस्त का ऐलान है कि हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए हैं और उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है कि जिन लोगों ने बारूद और गोले और आग के ज़रिए से मासूमों का खून बहाया है, ख़वातीन का खून बहाया है, जवानों को जो है वो कत्ल किया है, उनके सामने ये घुटने टेक कर उनसे अमन की भीख मांग रहे हैं। अगर गौर करके देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत को सब पता होता है, हुकूमत के पास एजेंसियां हैं, हुकूमत के पास ज़राए हैं, हुकूमत के पास वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो हैं वो मौजूद हैं जिसके ज़रिए से ये पता लगाया जाता है कि इन लोगों को ट्रेनिंग देने वाले कौन लोग हैं, इन लोगों को असला फराहम करने वाले कौन लोग हैं, ये किस कंट्री का बना हुआ असला इन लोगों के हाथों में इस्तेमाल होता है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हैं ये गवर्नमेंट के पास होती हैं, इनको पता होता है। यही वजह है कि कितने साल गुजर गए कि पाकिस्तान के अंदर ये आग और बारूद की जंग लड़ी जा रही है, और इस आग और बारूद की जंग में से आज तक किसी एक दहशतगर्द को भी लुकमा अजल नहीं दिया गया, किसी एक को भी सरेआम चौराहे पर फांसी नहीं दी गई। अगर चंद एक दहशतगर्दों को सरेआम चौराहों पर फांसी दे दी जाती तो फिर किसी को जुर्रत ना होती कि वो नए नए नाम रख कर फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नहते और बेगुनाह लोगों को इस तरह दहशतगर्दी का निशाना बनाते रहते। इस पर सख्त पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, कानून साजी की ज़रूरत थी, और अपनी रिट कायम करने की ज़रूरत थी। हुकूमत अपनी रिट खो चुकी है, हुकूमत के पास अहलियत ही नहीं है, हुकूमत के पास ऐसा कोई लाए अमल और निज़ाम ही नहीं है। हुकूमत की समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमने इस कौम के, इस मुल्क के मसाइल को किस तरह हल करना है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं। तालिबान के साथ, जालिमान के साथ मुज़ाकरात करना ये टोटली नाकामी है, और इसकी तरफ जाने की बजाय उनका सर उस वक्त तक कुचलते रहना चाहिए हत्ता कि वो चाहे, मेरे आका ने फरमाया, वो गिलाफ़े काबा के नीचे भी हूँ तो वहाँ से भी पकड़ कर उनकी गर्दनें मारी जाएं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जुल्म सितम जो है वो बहाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि तजादात हैं, एक दूसरे के वजूद को जो है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ इस मुल्क को, इस कौम को काम करने की ज़रूरत है। हज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मुअत्तज़िला आली ने ये इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ख़वारिज के ख़िलाफ़ तकरीबन जो है वो 700 सफ़ात पर मुश्तमिल एक आलमी सतह पर फतवा जारी फरमाया, जिस फतवे की दुनिया भर में पजीराई हुई, और उन्होंने ये साबित किया कि ये खारजी लोग हैं और ये शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन आए, इस मुल्क के अंदर जो है वो भाईचारा आए, एक दूसरे की जो है वो कुर्बतें बढ़ें, और हम जो है एक दूसरे के करीब होते चले जाएं, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है वही पाकिस्तान को बचाने और वही पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं, तो उसके लिए फिर जो तजादात हैं, जो लोगों की तहरीरें हैं, जो मुख्तलिफ लोगों ने, उलमा ने, ज़ाकरीन ने, दीगर मौलवियों ने आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत के फतवे सादर कर रखे हैं, तकरीरें सादर कर रखी हैं, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और उनको भी जो है वो रोकना चाहिए।
اور اس کے ذریعے سے ہی ہم اس ملک کے اندر امن، اس ملک کے اندر جو ہے وہ سکون، اور پھر ہمیں یہ مطالعہ بھی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر، مثال کے طور پہ انڈیا ہی کو لے لیں کہ انڈیا کے اندر بھی تمام مسالک موجود ہیں، تمام مکاتب فکر موجود ہیں، تمام فرقے موجود ہیں، اور ان فرقوں کے ہونے کے باوجود وہاں پر شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے ہیں سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کی قتل و غارت، اس طرح کی جو ہے وہ نفرت اور اس طرح کا عدم برداشت آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ صرف پاکستان کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے، تو پاکستان کے اندر اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، ان سارے محرکات کو کلا کما کرنا چاہیے، اور وہ محرکات آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، ان لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے، ان کے اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، جب تک وہ سارے جو نالے ہیں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے ان کو سکھا نہیں دیا جاتا اور ان کا راستہ کاٹ نہیں دیا جاتا، اس وقت تک یہ آگ اور بارود کی جنگ ہوتی رہے گی۔ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک اور اس کے علماء ونگ کی تو یہی خواہش ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی اس ڈھارس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان کی تمام قوتیں جو ہیں ان کو مسمار کیا جائے۔